When the teacher says good morning, beta, you have to raise your hand and say good morning. That is indirectly an indication that I am clearly audible to my students. Good morning. So that means I am clearly audible in 10th C only. Not other 10th E में एक बच्चे को audible हो. Okay. एक ही बच्चे को audible हो 10th E में. 10th D में am I audible? Correct. शाबाश बच्चे. So we were talking on the lenses. सभी बच्चे lenses के ऊपर बात करेंगे. बेटे lenses के चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे रे डायग्राम हो, चाहे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो, तो हमें साइन कन्वेंशंस का जरूर पता होना चाहिए. साइन कन्वेंशंस. So before doing anything deep, a little talk on sign conventions. Please write down heading sign conventions about lenses. Always write the date. Sign conventions. For lenses. Adopted worldwide. अगर आप इंटरनेशनल बुक्स भी पढ़ोगे तब भी आपको यही साइन कन्वेंशंस मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगा. रेडी? बेटे डोंट रोम, प्लीज सेटल डाउन एंड राइट डाउन द हेडिंग. कुछ बच्चे अभी कॉपी निकाल रहे हैं, देखो लेजी हैं. एक दो बच्चे अभी बैठे ही नहीं है क्लास में. लेजी बच्चे भी जल्दी शुरू करें. लुक हियर बेटे, हम एक लेंस बनाते हैं और ये देखो आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ. रिमेंबर, सेंटर ऑफ द लेंस is not called pole, it is called optical center. बेटे पोल तो हम तब करते थे जब मिरर्स की बात होती थी. मिरर्स. एंड लुक हियर, टीचर हैज ड्रॉन ए लाइन passing through the optical center. It is called principal axis. Look here, right? And when you have to judge the sign conventions, you first have to designate the incident ray, and it is your wish. You can send incident ray from this side or from this side. ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन आपकी खुद की मर्जी होती है. ठीक है? मान लीजिए हम इधर से इधर देते हैं. इंसिडेंट रे naturally it comes from the object towards the lens. ओके? लेकिन एक ही तरफ लेनी है, या इस तरफ या इस तरफ, at your choice. Now, first sign conventions. Any distance you have to measure in the vertical direction, that should be measured from the principal axis. Like if I place the object here and I write that object is AB. If I say object is AB, this is wrong, because teacher says all vertical distances has to start from principal axis. That means if teacher says object is BA, it is correct. BA, right? मान लीजिए कभी यहां पर इमेज बन गया इसका,
तो बच्चा बोलेगा सर मैं इमेज को ऐसे बोल दूं, ए डैश बी डैश बोल दूं। तो when you say a dash b dash, it means you have started from a to b dash. That is wrong. Any vertical distance has to be measured from principal axis. So image if I write a dash b dash, this is wrong. If I say image is b dash a dash, it is correct. Okay. So the first thing teacher has told, what bete? All, everybody please write down, all vertical distances are measured from principal axis. And one thing more, anything which is measured upward from the principal axis, vertically upward from the principal axis, that is taken as positive. So student can say, sir, that means object B A dash, it should be taken as positive. I will say yes, B A dash is positive because it is vertically upward from the principal axis. So that means, sir, B dash A dash should be taken as negative because it is vertically downward from the principal axis. So second learning point is what bete? Vertically up are taken as positive, vertically down are taken as negative. So far we have mentioned 3 sign conventions. How many total sign conventions are there? 6 sign conventions. So let me tell you the fourth sign convention. Fourth sign convention. But please pay your attention. What is the fourth? Any horizontal distance has to be measured from optical center. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से ही मापना शुरू करना है। तो आप लिखोगे all horizontal distances are measured from O, are measured from O. O is what? Optical center. तो अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं बेटे ऑब्जेक्ट की दूरी, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं टीचर, ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी है? तो बच्चा बोलेगा सर ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से बी ए है, बी ओ, बी से लेकर ओ तक, रॉन्ग। और बच्चा बोले इसी को हम यू भी बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा बेटे रॉन्ग, इट इज नॉट यू। ये ठीक है कि ऑब्जेक्ट की दूरी यू होती है, लेकिन अगर आप इसको बी ओ बोलोगे तो गलत है। आपको क्या बोलना है? ओ से लेकर बी तक। तो बच्चा बोलेगा ओ से लेकर बी तक यू। ये सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बच्चे को मैं पूछूं बेटे इमेज का डिस्टेंस कौन सा होता है? बच्चा बोलेगा सर वी होता है, वी इमेज का डिस्टेंस। आई सेड ओके। तो इमेज का डिस्टेंस है क्या? बच्चा बोलता है सर बी डैश ओ, बी डैश ओ। बिल्कुल गलत, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आपको ओ से मापने हैं। कोई बच्चा बोले सर फिर तो बी, वी जो है ना ओ बी डैश होना चाहिए, ओ बी डैश, करेक्ट, राइट। All horizontal distances have to be measured from optical center. Fifth learning point, जो horizontal distance इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट होंगे उनको
नेगेटिव लेना होगा। जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन की फेवर में होंगे वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो बच्चा कहेगा सर देखो इसका मतलब है आप इमेज का डिस्टेंस ले रहे हो ओ से बी डैश, यानी आपको उधर को मापना पड़ेगा, वी को मापने के लिए उधर को जाना पड़ेगा। ऐसा यस। तो फिर सर आपका ये येलो वाला एरो इस व्हाइट वाले एरो से मैच कर गया, यानी वी की डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब आप इस चीज को पॉजिटिव लोगे। यस पॉजिटिव लेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? डिस्टेंसेस in the direction of incident ray are taken as positive, और लास्ट साइन कन्वेंशन कौन सी है? ये जैसे यू है बेटे, इसमें यू के लिए मेरे को ओ से बी की तरफ आना पड़ेगा, यानी मैं अपोजिट आ रहा हूं, तो इसका मतलब मैं यू को नेगेटिव लूंगा क्योंकि ये इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट हो गया इस डायग्राम में। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हो गया सिक्स्थ पॉइंट, distances opposite to incident ray are taken as negative, ये जितने भी डिस्टेंसेस हैं ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर जो बच्चे इतना समझाने के बावजूद भी इंटेलिजेंट बच्चे भी मिस्टेक कर देते हैं, वो मैं बता दूं आपको। इतना समझाने के बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, मेंशन ऑल साइन कन्वेंशंस, आपने लिख दी। पेपर में फिर भी गलती करते हैं, क्या करते हैं सुन लो। नंबर 1, वो मिस्टेक्स ये करते हैं, वो सोचते हैं कि सर ने सिर्फ कन्वेक्स लेंस बनाया है तो ये जो साइन कन्वेंशंस हैं सिर्फ कन्वेक्स लेंस पे ही है। नो, मैंने बोला है लेंसेस, इसका मतलब है ये कन्वेक्स लेंस पे भी लागू है, कॉनकेव पे भी लागू है, कॉन्वेक्स पे भी लागू है, कॉनकेव पे भी लागू है, दोनों पे। ओके। दूसरी बात, दूसरी मिस्टेक करते हैं जो बच्चे, वो डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते हैं, यू को नेगेटिव लेना है, बी को पॉजिटिव लेना है, ऐसे ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं कि टीचर ने यू को नेगेटिव लिखा, बी को पॉजिटिव लिखा। वो परमानेंटली याद करने की कोशिश करते हैं कि सारी जगह पर ऐसे डाल दो ना, गलत। वो तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, किसी और रे डायग्राम में वी नेगेटिव भी हो सकता है। ओके। तो याद रखना, आपने टीचर ने ये जो लैंग्वेज लिखी है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट वो ही नेगेटिव लेने हैं, ये लैंग्वेज याद रखनी है आपने। ये नहीं याद कर लेना कि यू परमानेंटली नेगेटिव है या कुछ, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके। अब यू विल कंफ्यूज योरसेल्फ। एग्जाम्पल्स को याद नहीं करना, ये एग्जाम्पल्स तो टीचर समझाने के लिए करता है, क्योंकि उसको कोई ना कोई तो डायग्राम बनानी पड़ेगी ना। आपने लैंग्वेज को याद कर। तो जैसे इसमें मैंने v को पॉजिटिव याद लिखा है और डिस्टेंसेस इन द फेवर ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, तो बच्चा कहीं पक्का ही याद कर ले कि v पॉजिटिव होता है, तो वो गलत है। किसी डायग्राम में v पॉजिटिव होएगा, किसी में नेगेटिव होएगा, लेकिन ये रूल पक्का लगेगा, जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो पक्की। ओके। तो सभी बच्चों को ये प्रिकॉशन मेंशन कर लो बेटे, प्रिकॉशन प्लीज। तो आप क्या लिख लो, u एंड v ऐसे लिख लो, u v f आर ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज, ये 5 चीजें लिख लो, 6 चीजें। इनको लिखने के बाद नीचे लिखो स्टार पॉइंट बना के, they can have negative sign or positive sign in different ray diagrams. They can have negative sign or positive sign in different ray diagrams.
ओके, एक दूसरा स्टार पॉइंट बनाओ। 6 rules of sign convention are applicable on both types of lenses. Six rules of sign conventions are applicable on convex as well as concave lenses. तो अब हम आगे बढ़ेंगे बेटे। आगे क्या याद रखना बच्चे, ध्यान से सुनना। एक लीनियर मैग्निफिकेशन होती है, इसको क्या बोलते हैं सभी बच्चे याद करें, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको डिफाइन कैसे करते हैं बेटे, इमेज का साइज क्या है, साइज को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ये रेशो होती है, और लेंसेज के लिए ये इसके बराबर भी होती है। इसका मतलब जब टीचर कह रहा है अकेले लेंसेज के लिए इसके बराबर, तो उसको यहां लेंस मेंशन करना है। और दूसरी बात देखो बेटे, ये यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा तो यूनिट लेस हो। तीसरी बात यह है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव आंसर भी आ सकता है। चौथी बात यह है कि अगर नेगेटिव आ जाए, इफ नेगेटिव, देन image will always be रियल इमेज पक्का बनेगा। आप उसको फिंगर से टच कर सकते हो, आप उसको फोटोग्राफिक फिल्म पे डेवलप कर सकते हो। पांचवी बात क्या है कि अगर हम मैग्नीट्यूड के मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें, तो ये एम का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चीज को छोड़कर, वो लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। अगर लेस देन 1 होएगा तो इमेज का साइज पक्का छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, एंड वाइस वर्सा बेटे, यहां पर इमेज का साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज, ठीक है। और यहां पर क्या होएगा बेटे, यहां पर इक्वल होएगा नेचुरली। और ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ना, इफ नेगेटिव, इफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, देन इमेज विल ऑलवेज बी रियल। टीचर ने ऑलवेज लगाया है, ऑलवेज, दोनों लेंसेज में। और यहां पर टीचर लिख सकता है एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपका, मान लीजिए आपका आंसर आ गया +3, तो अगर पॉजिटिव में आ गया एम की वैल्यू, तो इमेज रियल की बजाय वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल, वर्चुअल क्या होता है, जो इमेज दिखाई तो दे लेकिन हम उसको फिंगर से टच ना कर सकें और उसको फोटोग्राफिक फिल्म पे डेवलप ना कर सकें। एक बात और याद रखनी है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी, देखिए कोई इंटेलिजेंट बच्चा, 1 2 3 4, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज अभी छोड़ रखी है, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। शाबाश, एनी स्टूडेंट। मेरे को ये बोला गया ये बच्चे काफी अच्छे हैं, महक, तानिया, शिवानी, प्रभज्योत, ऐसे कुछ बच्चे बताए हैं जो बड़े शार्प हैं। एक सहज करके बच्चे बताया गया, शाबाश। कोई बच्चा बताया मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ा है, कौन सा, सुनो बेटे। हम जब भी यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं तो आपको जो ऑब्जेक्ट या इमेज दिखाते हैं ऐसे निडल शेप में दिखाते हैं, निडल शेप।
यानी उसकी जो शेप है एक लाइन की तरह है, लाइन की तरह। लेकिन जरूरी थोड़ी है ऑब्जेक्ट ऐसा ही हो। ऑब्जेक्ट तो ऐसा भी हो सकता है, देखो, जिसकी हाइट भी होएगी और विड्थ भी होएगी, तो दोनों चीजें आ गई। और इसमें क्या था जो पहले दिखाया था, इसमें लेंथ तो डोमिनेटिंग है और विड्थ ना के बराबर है। तो जब तो विड्थ ना के बराबर है तब तो ये सब सारे पॉइंट हो गए। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो कि लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, तब हम उसकी उसकी लीनियर हाइट देखने के बजाय एरिया देखते हैं, एरिया, ऑब्जेक्ट का एरिया और इमेज का एरिया। तब उसको बोलते हैं हम एरियल मैग्निफिकेशन। एम एरियल, इमेज का एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट का एरिया। लेकिन बच्चा कहेगा सर ये तो एरियल मैग्निफिकेशन में बताया, अब हमसे तो लीनियर मैग्निफिकेशन की बात पूछते हो, ये तो गड़बड़ है भाई। बेटे अभी मैंने बताया नहीं है वो पॉइंट। असली असली पॉइंट ये है कि अगर आपको एरियल मैग्निफिकेशन निकालना हो और लीनियर मैग्निफिकेशन आपके पास हो, तो आप उसी से स्केयर करके निकाल सकते। शाबाश। देखो ये सारे पॉइंट आपको डेडिकेटेडली मेंशन करने चाहिए। आप क्या करते हो, इसके पॉइंटों को अच्छे से ऐसे एरो बना के नहीं बताते। देखो कितने सारे एरो निकल गए। जिस बच्चे को ये सारे पॉइंट याद होंगे वही अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो पॉइंट आपको नहीं आता था आपने नोट करा। किन बच्चों को ये सारे पॉइंट समझ आ गए हैं? टीचर एक फीडबैक चाहता है, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस प्लीज गिव द इंडिकेटर। बेटे सुस्ती मत करना, मेरे को पता नहीं लगता फिर। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बेटे, वेरी नाइस वेरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जबकि हमारा बेस बन गया, और एक बार बस फार्मूलों की लिस्ट बना के फिर हम फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। कुछ जल्दी से सुन लो। पहली बात, नंबर वन, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपको टीचर ने बता ही दिया है। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये फार्मूला पावर वाला सिर्फ लेंसेज में होता, मिरर्स में नहीं होता। और 1 अपॉन V, चलो इसको मैं दूसरी तरह लिखता हूं क्योंकि आपने वैसे ही याद करा होगा। 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। अभी ये गलत है क्योंकि अभी तो ये मिरर फार्मूला है। अब ये बन गया नेगेटिव लगा के, इसको बोलते हैं, इसको लेंस फार्मूला भी नहीं बोलते, इवन बुक्स भी गलत हेडिंग दे देती है। इसका नाम है गाशियन लेंस इक्वेशन। गाशियन लेंस इक्वेशन, ये असली नाम है बेटे इसका। अगली बात, इस एक और कौन सा, लीनियर मैग्निफिकेशन, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, और V अपॉन U। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला बेटे, एरियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ये कम से कम है, कम से कम जो आपको याद होने चाहिए। और बेटे फटाफट से जल्दी से सुन लो, ये दोनों के दोनों लीनियर हो चाहे एरियल हो, यूनिटलेस है, यूनिटलेस। पावर की यूनिट जो है वो डायप्टर होती है। अब पावर को छोड़ के और लीनियर मैग्निफिकेशन और रेडियल मैग्निफिकेशन को छोड़ के बाकी जितने भी सिंबल दिख रहे हैं, जितने भी, उन सभी की यूनिट मीटर होती है, मीटर। अदर्स, मीटर इज द सिंबल M फॉर ऑल अदर सिंबल्स, चाहे फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, U हो, V हो, I हो, O हो, जितने भी बचे हुए हैं सारे सिंबल, यानी आपने इन दो को ध्यान से याद कर लेना। पावर की यूनिट डायप्टर
और लीनियर जिसमें मैग्निफिकेशन वर्ड लग गया वहां यूनिटलेस, और बाकी सभी मीटर्स। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है सभी बच्चों ने, ये जो यू के आगे नेगेटिव लगा है, ध्यान से सुनना बेटे, यहां पर टीचर बात कर रहा है, दो जगह पर इकट्ठी बात करने लगा हूं। ये जो यू के आगे नेगेटिव साइन लगाया टीचर ने, अगर इसको यहां से मैं उठाऊं और यहां रख दूं, फिर से सुनो, यहां से उठा के यहां रख दूं, तब ये दोनों फार्मूले मिरर्स के लिए ट्रू हो जाएंगे, लेंसेज के लिए गलत हो जाएंगे। लिख लेना बेटे, इफ द नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ यू moves to here, then both of these formulas will in the new format will be true for mirrors, not lenses. एक बच्चे ने बोला, मेरा एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा इसको गलत करके आ गया था पेपर में, तो उल्टा करके आ गया, तो मैंने उसको कैसे मेमोरी टूल दिया उसके बाद वाले बैचेस को, देखो ऐसे मैंने उसको बोला, बेटे लेंसेज के स्पेलिंग को तुम, ये जो लेंसेज के स्पेलिंग्स हम याद करते हैं, कैन यू राइट लर्न इट लाइक दिस, क्या तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो? बच्चा बोला, सर ये क्या बात हुई, आपने तो वही लिख दिए। मैंने कहा, बेटे ये मैं देखो येलो कलर का नेगेटिव साइन डाल दी। कहते सर तो क्या? फिर मैं उसको बोला, अच्छा यू को पिकअप करो, यू को पिकअप करा, और आपको पता है कि इस फार्मूले में यू को नेगेटिव लेना है, तो यू को पिक करके, तो आप इसके इस पोर्शन को येलो कलर से, यानी कि आपने इंडिकेशन दे दी कि ये लेंसेज में नेगेटिव होएगा यू के आगे। समझिए, यू में ऐसे नेगेटिव बना के नेगेटिव बना के नेगेटिव बना, लेंसेज में यू वाला पोर्शन नेगेटिव। ओके, और तो मिरर्स में उल्टा हो गया, वहां पॉजिटिव हो गया बच्चे। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चंस। शाबाश, ये देखो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, जो बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते हैं। आपको एक बोलता है क्वेश्चन, वो अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढता हूं अपने बच्चों के लिए। यस, लिखिए सभी बच्चे, बेटे एक क्वेश्चन लिखो, योर अटेंशन। अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज कितना बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, गॉट इट? 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to principal axis in front of convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 30 centimeter. Distance of the object from the lens is 30 centimeter. एक दो तीन चार चीजें दे दी अभी तक। Now he says, what is the position of the image? Yani V is asked, what is the position of the image? Second, he says, what is the size of the image? दूसरी चीज पूछ ली। और तीसरा पूछा हुआ है बेटे, what is the nature of the image? Nature of image. ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, 5 मार्क्स। शाबाश, कैसे करेंगे? देखो बेटे,
जब भी आपको कुछ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सर जब आप समझाते हो तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन जब हमने करना होता है ना तो हमें पता ही नहीं लगता किधर से जाना है किधर से। जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम है वो मेरी बात ध्यान से सुने। कभी भी फिजिक्स के सब्जेक्ट में कभी भी न्यूमेरिकल कराने हो, देख लो इतने साल पढ़ाने के बाद बोल रहा हूं आपको, 1996 में ली थी पहली क्लास। कभी भी आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल निकालना हो और आपको मेथड ना पता हो, तो जो क्वेश्चन मार्क वाले सिंबल होते हैं उनमें से किसी एक सिंबल को पकड़ लो। पकड़ लिया, अब ये पकड़ लिया, और जो गिवन सिंबल्स हैं वो भी पकड़ लो जिनकी वैल्यू दे रखी है। ये दे रखी है, ये दे रखी है, और ये दे रखी है। अब मैं अपने आप को स्टूडेंट बन के मैं सोचूंगा कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इन चारों को इन्वॉल्व करे, या कम से कम तीन को इन्वॉल्व करे, या कम से कम दो को इन्वॉल्व करे। तो मैं कहता ये चारों को इन्वॉल्व करे, ऐसा तो कोई मेरे सर ने फार्मूला नहीं कराया क्लास में। और तीनों को इन्वॉल्व करे, यस यस, याद रहे, लेकिन ये सिंबल वो होने चाहिए जिनमें से, वो सिंबल हो जिनकी वैल्यू गिवन हो, और आस्क्ड वाले सिंबल में एक ही रखना है, दोनों नहीं रखने, एक रखना है। फिर सोचना है ऐसा कोई फार्मूला जो सारे सिंबल इन्वॉल्व हो। आता है मेरे को, नहीं आता, नहीं आता। ऐसा कोई फार्मूला जो चार नहीं तो कम से कम तीन को इन्वॉल्व करे। है कोई फार्मूला बेटे जो तीन सिंबल्स को इन्वॉल्व करे? एनीबॉडी? क्या नाम है उस फार्मूले का? लेंस फॉर्मूला। नहीं बेटे, तभी तो मैंने बोला आपको कि उसको लेंस फार्मूला नहीं बोलना। गॉसियन लेंस इक्वेशन। हाँ देखो, अगर आपकी बुक्स में भी लिखा ना, आप बोलोगे सर ये मनजीत सिंह तो 10 सालों से छप रही है, तो भी वहां से भी गलत कर दो। वो मैं टीचर हूँ, देखो इतनी बच्चों के सामने कह रहा हूँ। लेंस फार्मूला इसका रॉन्ग नाम पॉपुलर हो गया, इंटरनेशनल बुक्स में इसको गाशियन लेंस इक्वेशन बोलते हैं। तो आपने देखा बच्चे, हमारे पास आपने सही बताया कि सर ये फार्मूला है, बहुत अच्छे। अब हमने इसमें डाटा पुट करना है। जब भी डाटा पुट करना है थोड़ा सा रफ वर्क में चले जाओ। लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखेंगे, और टीचर ने सिखाया था ऑप्टिकल सेंटर से अपोज ऑब्जेक्ट की तरफ एंगल मापेंगे, और लाइट जाएगी इधर को इंसिडेंट रे। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। यू को क्या पुट करें, नेगेटिव या पॉजिटिव? एनीबॉडी? नेगेटिव। जो बच्चे नेगेटिव कह रहे हैं वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, जो पॉजिटिव कह रहे हैं वो विक्ट्री का साइन बनाएंगे, डबल फिंगर। जल्दी बोलो, जल्दी देखो कौन सी क्लास क्या कर रही है। 10th सी बिल्कुल सही, 10th डी बिल्कुल सही। 10th ही बोल ही नहीं रहा यार, 10th ही में ये दो बच्चे बोल रहे हो। 10th डी, टीचर कह रहा है कि अगर यू को आपने -30 पुट करना है तो एक फिंगर, अगर यू को +30 पुट करना है तो डबल फिंगर। जल्दी बताओ, 10th ई। बता तो रहे हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस 10th ई में लो है। कोई बात नहीं, कोई बात बेटे। 5 को बच्चे बता रहे हैं कि सर इसको नेगेटिव पुट करना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ यू इधर इधर मापना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे उधर जाती है। तो यू को आप नेगेटिव बनाते हुए फिर पुट करना। फार्मूले वाला नेगेटिव अलग है, ओके। तो मैंने इसको पुट करा 1 माइनस ये फार्मूले वाला नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन वाला नेगेटिव। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को क्या पुट करें? फोकल लेंथ को क्या पुट करें? एनीबॉडी? पॉजिटिव या नेगेटिव? जो बच्चे नेगेटिव कह रहे हैं एक फिंगर, जो पॉजिटिव कह रहे हैं डबल। जल्दी जल्दी जल्दी। नेगेटिव कह रहे हैं एक, पॉजिटिव कह रहे हैं डबल। कोई पॉजिटिव कह रहा है, कोई नेगेटिव कह रहा है। चलो डाउन डाउन, अब बताता हूं बेटा। देखो ध्यान से सुनो, कॉन्वेक्स लेंस को याद करो। उसमें जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करते थे तो वो इधर को कन्वर्ज करता था, जहां फोकस पॉइंट आता था वही फोकल लेंथ लेते थे बेटे हम। अब एक बच्चा मेरे से कहता है सर लाइट तो इधर भी फोकस कर सकते हैं, ऐसे करके इधर को। मैंने कहा बिल्कुल सही, वो भी सही है बात। तो फिर सर फोकल लेंथ इधर लेंगे कि इधर?
मैंने कहा ये बताओ इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर को सर, और फोकल लेंथ घुमा रहे हो आप। तो इसका मतलब है अगर इंसिडेंट रे इधर से ले रहे हो तो ये उसकी फेवर में होगी। अगर इधर से लेते ऐसे तो ऐसे फोकस होता तो इंसिडेंट रे उधर होती तो फोकल लेंथ भी उधर होती। जब फेवर में होता तो पॉजिटिव लेना पड़ता है। इसका मतलब समझदार बच्चा बोलेगा सर इसको पॉजिटिव बनाते हुए आप यहाँ पर, गॉट इट। तो मैंने इसको 1/20 पुट कर दी। अब कोई बच्चा बताए जो मैंने v निकालना है उसको क्या पुट करूं, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब बताओ बेटा, इंटेलिजेंट है ये क्वेश्चन। जो बच्चा इसका जवाब दे दे वो बेस्ट बच्चा है तीनों सेक्शन। वी वी को को क्या कोई पुट, सिंबल नहीं रखना है बिकॉज वो आस्क्ड है। ये कौन सा बच्चा बोला है भाई, 10th डी में से एक बच्चा बोला, कौन सा बेटे बटिया ने। गुरताज। शाबाश, एक ही बच्चे ने बताया। तो तीनों सेक्शनों में से गुरताज के लिए स्पेशल क्लैपिंग। इस बच्चे ने बोला कि सर जिस सिंबल को निकालना होता है ना उसका अलजेब्रिक साइन आपको पता भी हो तब भी वो साइन पुट नहीं करना आपने, वो अपना प्लस या माइनस साइन कैलकुलेशन करके खुद से लेकर आएगा। ओके, तो जब आप इसको ऐसे ही 1/v रखना है तो 1/v रखना है तो बस निकाल दो बेटे 1/20। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया और जैसे इसे इधर जाएगा फिर से नेगेटिव हो गया बेटे, ये आ गया 1/v। ओके, तो एलसीएम कितना आ गया बेटे, एवरीबॉडी नोज, अब तो मैथ है आप कर ही लोगे। तो ये क्या आ गया बेटे हमारा, क्या आ गया बताओ। 60। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो ये 60 आ गया v की वैल्यू। देखो बेटे 60 प्लस में आया कि माइनस में आया, और खुद ही प्लस में आया। और आपको अच्छे से याद भी है कि ज्यादातर फिगर कन्वेक्स लेंस में ऐसे बनते थे, यहाँ ऑब्जेक्ट रखने से इमेज इधर बनता है तो यानी v का डिस्टेंस उधर को जिधर को इंसिडेंट नहीं तो पॉजिटिव, यूजुअली पॉजिटिव ही होते थे मैक्सिमम रे डायग्राम में। यूजुअली कह रहा है नॉट ऑलवेज, तो v पॉजिटिव आ गया। अब कौन बच्चा बताएगा आई के लिए क्या फर्क क्वेश्चन करना है, कैसे शुरू करें आई के लिए। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाई u। मैग्निफिकेशन वैल्यू। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बच्चे ने मेरे को बता दिया, ठीक है। दूसरा बच्चा, मान लीजिए हमारी क्लास में एक बच्चा कमजोर है, ठीक है, उसका थोड़ा नॉलेज कम है, उसको आइडिया क्लिक नहीं करा। अब दूसरा बच्चा जो कमजोर है, जो मतलब कमजोर का मतलब वो नॉट अमंग टॉप 10 यहां मैं बात कर, तो वो बच्चा कहेगा सर अब आपने आई निकाला ना, जो सिंबल निकालना है वो लिख लो, जो गिवन है फिर से लिख लो, जो और दूसरा गिवन है लिख लो, जो एक और निकाल लिया लिख लो, गिवन है सॉरी जो निकाल लिया हमने वो भी निकलो, क्योंकि इन सभी का डाटा हमारे पास है और ये क्वेश्चन मार्क है। अब फिर से सोचो, क्या कोई टीचर ने ऐसा फार्मूला बताया जो पांचों सिंबल्स में हो, है ना, ऐसा तो कोई नहीं। क्या कोई टीचर ने ऐसा फार्मूला बताया जो चारों में हो, चार सिंबल्स में हो, तभी एक बच्चे को माइंड में आएगा सर चार सिंबलों में एक फार्मूला जरूर होता है। आई सेड भाई कौन सा होता है, चार में नहीं तो तीन में हो, तो ये बच्चा इस पे कंसंट्रेट कर देगा। गॉट इट। बच्चा कहेगा सर देखो ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये आप पूछना चाहते हो, ये पूछना चाहते हो, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, बन की बात, क्लियर है। तो इसी को यूज करते हुए आई कितना आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज और ये क्रॉस पोजीशन करके v अपॉन u। अब वैल्यू रखो, ऑब्जेक्ट कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वर्टिकली आपको 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे प्लस में, और v और u अपना अलजेब्रिक साइन पहले ही लेकर आए हैं। v तो लेके आया 60 प्लस में, और u को जब हमने पुट करा था जो अलजेब्रिक साइन उधर पुट करना वही इधर पुट करना, ये कर दिया बेटे हमने।
तो आई का साइज आपको पता लग गया, हाउ मच, आई का साइज आपने बता दिया -10। अब एक चीज देखो, आई का साइज नेगेटिव में आया, इसका मतलब जरूर जो इमेज होएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लटका होगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने साइन कन्वेंशन में क्या समझाया था, प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है। अब एक बात और, हमने इसका आंसर दे दिया, वी का आंसर दे दिया, आई का आंसर दे दिया। अब नेचर ऑफ इमेज के बारे में बोल रहे हैं, कौन बच्चा बताएगा नेचर ऑफ इमेज कैसे बताऊं? Real, inverted and enlarged. नहीं बेटे, मेरे को 10th डी से नहीं चाहिए बच्चा, बार बार इधर से आवाज आती है, 10th सी में से चाहिए। 10th सी में से कौन बच्चा बताएगा जो कि मैं नेचर ऑफ द इमेज कैसे बताऊं? 10th सी में से, हाँ ये गुड़िया, ये रेड टी शर्ट वाली, ये होता है बेटे डेयरिंग स्टूडेंट। देखते हैं क्या बोलती है। फिर से बोलो बेटे, फिर से। नहीं, ये तो आपने बता दिया, आपने बता दिया, मैंने चलो ठीक कर दिया, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि इमेज के ये नेचर है? कैसे बता दिया आपने, रट्टा मारा हुआ है या कैसे बताया? जो इमेज का साइज है वो नेगेटिव है, वो तो नीचे बनेगी तो वो इन्वर्टेड। बट बच्चे ने 80% आंसर सही बताया। बच्चे कहते हैं सर आप खुद ही देख लो, आपका इमेज का साइज 10 है और ऑब्जेक्ट का साइज 5 है, तो पहली बात तो आपका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, यानी मैग्नीफाइड हो गया, मैग्नीफाइड इमेज। दूसरा, इस बच्चे को ये बोलना चाहिए था कि सर अगर आप इसी क्वेश्चन में, हालांकि हमें मैग्निफिकेशन नहीं पूछा हुआ, अगर आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते तो इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज पुट करते ना। मैंने कहा बिल्कुल। तो इमेज को आप -10 पुट करते, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट को +5 पुट करते, बिल्कुल। तो आपका जो m है ना वो -2 आता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, फिर क्या करूं? सर आप भूल गए, आपने बोला था कि जब m नेगेटिव आएगा तो इमेज हमारा रियल होएगा। बहुत अच्छी बात। और तीसरा, इस बच्चे को बोलो कि सर क्योंकि ये नेगेटिव है, आपने खुद ही अभी बताया था, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लटका हुआ बनेगा इमेज, ये बताया था देख। तो ऑब्जेक्ट तो ऐसे खड़ा है, तो ये उससे अपसाइड डाउन आ गया। तो पहला पहला लर्निंग पॉइंट इन्वर्टेड, दूसरा यहां से पता लगा मैग्नीफाइड, तीसरा नेगेटिव आने पर रियल। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? इमेज की नेचर। इमेज की नेचर क्या लिखेंगे बेटे? इमेज की नेचर, एक तो मैग्नीफाइड, एक रियल, एक इन्वर्टेड। देखो, इन्वर्टेड, रियल, मैग्नीफाइड। ओके। तो एक और आपको टूल बताता हूं। जब आपके u की वैल्यू, गौर से देखो, जब आपके u की वैल्यू f से बड़ी हो, f से बड़ी हो u की वैल्यू, तो आपका ये आंसर आता है। ये आप अलग से याद रख सकते हो। और इसका मेमोरी टूल देखो, मैंने बच्चे भूल जाते थे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस में u जब f से बड़ा हो तो इमेज बनता है MRI। मेडिकल की टर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लेकिन हमने उसको, मेडिकल की टर्म को नहीं याद करना, हमने क्या करना है MRI, मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड। तो सर फिर आप मेडिकल की टर्म क्यों बोल रहे हो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग? क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े हो गए ना लाइफ में, आपको ये शब्द बार 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 सुनना पड़ेगा, याद ही हो जाएगा आपको 20 साल का, 20 साल की उम्र तक तो MRI। सो इसलिए टीचर ने उससे मैच करा के याद करा दिया, बच्चा एकदम से याद करेगा कॉन्वेक्स लेंस U ग्रेटर देन F, इमेज विल बी MRI, MRI ऐसे रट्टा मार लो।
अदरवाइज आपने पेपर में उसका फुल फॉर्म मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टर। जिन बच्चों को ये पूरा डिस्कशन के साथ क्वेश्चन समझ आ गया वो तो राइट हैंड खड़ा करेंगे, और जिनको नहीं समझ आया वो बिना किसी शाई के लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड इट? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जल्दी बेटे, दोनों में से एक हाथ जरूर खड़ा होना चाहिए। देखो ये बच्चा, इसके दोनों नहीं खड़े करके, ये 10-3 में सुस्त बच्चा ना हो। ठीक है बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। शौक है बच्चों को पढ़ने का, और जानते हो बच्चों को शौक पढ़ने का कब होता है? मैं इतने स्कूलों में पढ़ाता हूँ, तब होता है जब उनका क्लास टीचर भी बढ़िया हो, जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया होगा। ऑल एप्रिसिएशन टू योर क्लास टीचर्स। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटे। बेटे मैं एक क्वेश्चन में आपको डालना चाहता हूं खुद से। आप हाँ जी, टाइम हो भी गया, और चलो ठीक है, सर कह रहे हैं तो फिर अब हमें टीचर्स का तो मानना ही पड़ता आपस में भाई। बाय बाय।